Hello, dear trainees. I hope you all are doing very well. Well, I am your trainer Prerna Thakkar. Welcome you to the class of COVID Care Assistant course. I would like to know you. This training is getting facilitated by our great telepolice under the UVA scheme. And the training is getting imparted through the knowledge partner IACT Education. So first of all, I would like to give you the background behind this training. The course which you will be studying is COVID Care Assistant, right? First of all, you should know what exactly this course all about, what's the agenda, what's the motive behind imparting you training on this course, and what kind of benefit you will be getting after completing the whole course. So, I want to give you the background. As we all know, the pandemic is all around. हर जगह पे एक ग्लोबली एक तरह का एक हॉरिफाइड सिचुएशन है कोरोना वायरस विच हैज़ कॉज्ड अ डिसीज कॉल्ड कोविड-19. ठीक है, हो क्या रहा है ये? समवेयर दिस स्टोरी इट्स लाइक हम लोग एक सर्कल में हैं, समथिंग इज कंप्लीटली स्टकिंग our whole life, I must say the whole world is on rest, first time ever it's been seen. ऐसा देखा गया जैसे पूरा वर्ल्ड ही एक रेस्ट मोड में आ गया है, पूरा संसार एक जगह पे रुक गया हो, और उसका कारण क्या है? कोरोना वायरस. So we will be studying a lot about the coronavirus. We will be studying a lot about the disease caused by coronavirus. exactly इसका impact क्या है और हमारी जनरल लाइफ में भी इसके कितने impacts देखे गए हैं. अभी आपने देखा होगा इसके बहुत सारे disadvantages जो हुए काफ़ी लोगों के. जब हम लोग लॉकडाउन पीरियड में थे, काफ़ी लोगों सबसे पहला एक मोड की फर्स्ट टाइम इट्स लाइक इट वाज अ फीलिंग वी आर स्टक इनसाइड द होम फॉर मंथ्स, राइट. सब काम स्टडीज सब छोड़कर सब घर पे बैठे हैं, राइट. तो सबसे पहले आपने देखा कि हम पिछले साल से क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? पैंडेमिक कोरोना वायरस. दिस इज समथिंग वी आर लाइक, आई थिंक अब हमारे कान भी इतने ज़्यादा वो सुनकर एक तरह से दे आर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हियरिंग दिस और ओवर एंड आउट हियरिंग द सेम थिंग, राइट. पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया एक रेस्ट मोड में चली गई. बिजनेसेस क्या हुए? इफ़ वी टॉक अबाउट द होल द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, job sector, I'm talking about businesses, job sector, studies, normal life routines, everything has been impacted due to this pandemic. काफ़ी लोगों ने नौकरियां भी खोई अपने डेली के wages, people who used to run their life through the daily wages, it stopped suddenly. तो एक तरह की horrified और बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में वी ऑल गॉट स्टक्ड. तो ये एक बहुत ही, आई मस्ट से, इट्स अ नोबल एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव व्हिच हैज़ बीन टेकन बाय आवर ग्रेट टेलीपोलिस टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज to our youths like you. So you've been chosen as the stars, you've been chosen as the best youths, the best people, right? You've been our great telepolice. So after seeing all such situation all around, what our great telepolice has decided, they have taken an initiative to provide ample of job opportunities to our youths so that they can have a future financial freedom. After completing this course, you will be getting assistance on the job placements too. However, it completely depends upon your skills. आपने कितना स्किल गेन किया है, कितना लर्निंग आपने गेन किया है थ्रू आउट द होल ट्रेनिंग, ये डिपेंड करता है. उस बेस पे
अपने आप को कैसे शोकेस करते हैं जॉब के लिए, असिस्टेंस बिल्कुल आपको दी जाएगी थ्रू द दिल्ली पुलिस, थ्रू द नॉलेज पार्टनर ICT एजुकेशन। हाउएवर चलना किसे है, आपको चलना। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो दिल्ली पुलिस, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस टाइम पे, अगर आप देखो तो कितने मल्टी सेक्टर्स में, इफ़ यू सी इन द हॉस्पिटैलिटी, इफ़ यू सी travel industry, so many industries have been impacted due to this pandemic, due to this coronavirus. So in healthcare sector आपने देखा होगा पीछे healthcare sector में कितनी ज़्यादा डिमांड, वर्कफोर्स की जो डिमांड तब से बढ़ी है जब से ये कोरोना वायरस आया है, जब से ये डिसीज़ आई है। सो दिस टाइम there is a need of workforce in the healthcare sector to fulfill their needs and to fulfill the needs of the youth, to provide them the financial freedom. This initiative has been taken by a great Delhi Police. Okay, so Delhi Police is launching an online training under युवा scheme to prevent the spread of COVID-19. ये जो आप सारी अभी स्टडीज़ करेंगे, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है और ये किसके अंडर हो रही है? दिल्ली पुलिस की एक स्कीम है युवा। युवा आप क्या समझते हैं? युवा मीन्स यूथ, राइट? युवा स्कीम के अंडर ऐसे यूथ्स को हु आर रियली विलिंग टू डू सम प्रोफेशनल कोर्सेज एंड देन लेटर ऑन want to see themselves placed in good industry, in different companies, in the best companies, so that they can earn through them and they can make out their survival and they can support their family as well, right? तो युवा स्कीम के अंडर दिल्ली पुलिस का ये बहुत ही, अगर मैं बात करूँ तो बहुत महान इनिशिएटिव है, जिसके अंडर काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं हमारे यूथ्स को, हु आर रियली विलिंग टू टेक द ट्रेनिंग्स, हु आर रियली डिज़ायर टू टेक द ट्रेनिंग्स, हु आर रियली डिज़ायर टू टेक द ट्रेनिंग्स ऑन मल्टी प्रोफेशनल कोर्सेज एज पर देयर चॉइस, एज पर, और उसके बाद वो स्किल्स गेन करने के बाद through the trainers, right, through the education partners who will be imparting training, they are given help for the job placements, and then later on they are showcased in the interviews to different HRs of the different companies, and then depends upon your skills, whatever you have earned, whatever you have learned in the training, you further clear your interview, right? तो आपके स्किल्स पे जो इनिशिएटिव, ये जो युवा इनिशिएटिव है, इट्स ऑल कंप्लीटली, इसका जो मोटिव है, its motive is to provide the best skills to our desired youth who are willing to move on in their career with the best skills and earn the best wages for the future and to support their family as well. So let's move on. तो ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, this is all by our great Delhi Police under the युवा scheme. किस लिए? To prevent the spread of COVID-19, ताकि COVID-19 के स्प्रेड को रोका जा सके। तो आप इसमें क्या करोगे? आपका रोल क्या होगा? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो। हम यहाँ पे क्यों हैं? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वी शुड नो व्हाई वी आर हियर। सो कोविड केयर असिस्टेंट, आपने नाम से इफ यू सी, इट्स कोविड केयर असिस्टेंट। आप जब फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आपको जॉब के लिए असिस्ट किया गया, आपके स्किल्स के बेस पे आपको कहीं पे प्लेसमेंट हुआ इन सम, मे बी इन सम हॉस्पिटल, राइट? आपने देखा लास्ट टाइम कितना इमरजेंसी आया था, कोविड का एकदम से इतना वॉक क्रिएट हुआ था और इवन हॉस्पिटल्स में स्पेस तक नहीं था पेशेंट्स के लिए, बेड्स वर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, देयर वाज a huge demand of oxygen cylinders. तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को बेस्ट स्किल्स इम्पार्ट किए जाएंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू द थियोरी एंड द प्रैक्टिकल मोड, राइट? आफ्टर गेनिंग दो स्किल्स आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपको हेल्थ सेक्टर में आगे प्लेस करने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। ओके,
और आप अभी हम लोग सुन रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है, मीन्स थर्ड वेव विल बी कमिंग इन अनदर 1 or 2 months, और इट्स कम्प्लीटली समवेयर इट्स अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन एज वेल, राइट, बट दे आर प्रेडिक्टिंग, राइट, आर रिसर्चर्स आर प्रेडिक्टिंग कि ऐसा हो सकता है 1-2 महीने में कुछ ऐसा होने वाला है, बिकॉज ये जो वायरस है वो अपने रूप बदलता है, टाइम टू टाइम अपने रूप बदलता है। तो आप लोगों को वो बेस्ट नॉलेज होगी, वो बेस्ट स्किल्स होंगे, ताकि अगर कुछ ऐसी मुसीबत आती है, आप लोग एक योद्धा की तरह खड़े होकर मदद कर सकें, एक वर्क फोर्स की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिमांड पूरी हो सके, एंड यू पीपल आर chosen as the soldiers to prevent this COVID-19 disease. Okay, so let's move on. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये अभी मैंने आपको क्लियर किया, व्हाट्स द रोल ऑफ कोविड केयर असिस्टेंट। आपने जब आप ये ट्रेनिंग ले लेंगे, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यू विल गेट द जॉब प्लेसमेंट। एडवांटेज ऑफ टेकिंग द ट्रेनिंग, एडवांटेज यही है, ऑब्वियसली जब आप कोई काम करते हो तो क्या फ़ायदा होता है, मॉनेटरी बेनिफिट, ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट। उससे क्या होता है, आपका सर्वाइवल स्मूथ हो जाता है, आपकी डेली की नीड्स पूरी होती हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, और आपके कल को और भी कुछ गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। सो बाय अर्निंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, बाय अर्निंग अ सफिशिएंट अमाउंट, आई मस्ट से, you can fulfill all your goals, you can fulfill all your targets, because money is always the need, right, to get any task accomplished, right? So move on. What is COVID-19? It's important to know what is exactly COVID-19 है क्या। इतने टाइम से हम सुन रहे हैं COVID-19, let's move on and let's know more about the COVID-19. Let's move on. Virus. A virus is a submicroscopic agents which are responsible for causing some infectious diseases in plants, animals, or humans, but they do not have the tendency to replicate by themselves. They can replicate in the host body. आप समझते हैं कि मैंने क्या बोला। तो देखिए, वायरस are, I'm writing it and then I will be explaining you. Microscopic agents which are responsible for causing infectious. Viruses are submicroscopic agents which are responsible for causing infectious diseases in, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बीमारी फैलाते, ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपने अभी एक ह्यूमन वायरस देखा, कोरोना वायरस, जो ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहा है, इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड और ह्यूमंस। ठीक है जी। अब दूसरा, पहला तो ये बिल्कुल सब माइक्रोस्कोपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंपॉर्टेंट टू सब, जब कोई चीज़ बहुत माइन्यूट होती है, एकदम बिल्कुल जिसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक जहाँ पे वर्ड आएगा, जहाँ पे कुछ देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। उसका जो साइज इतना माइन्यूट होता है कि यू नीड अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप टू सी दैट वायरस, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कैसा दिखता है, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ इस वायरस की क्या है, ये जो वायरसेस होते हैं
कोरोना वायरस को देखने के लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज अ लाइट माइक्रोस्कोप, आप उससे नहीं देख सकते, यू नीड अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन। एक माइक्रोस्कोप होता है जब आपको बहुत ही डिटेल में किसी बहुत ही माइन्यूट चीज़ को देखना होता है तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ELECTRON स्पेस MICROSCOPE इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये वायरस अब क्या है, ये दे आर सम माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स। एजेंट्स क्या होते हैं, जो कोई चीज़ कैरी करके लाते हैं। क्या कैरी करके ला रहे हैं, हमारी बॉडी में जब अटैक कर रहे हैं तो व्हाट आर दे कैरिंग, बीमारी फैला रहे हैं, राइट। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद जाने के बाद जब हम ये कोरोना वायरस पढ़ेंगे किस तरह से हमारी बॉडी पे अटैक करता है, कैसे अगर किसी की बॉडी को उसने इन्फेक्ट किया है तो कैसे अपना जाल अंदर फैलाता है, किस तरह से वो ऑर्गन्स में, सेल्स में इन्फेक्शन फैलाता है। वी विल बी स्टडिंग moving forward, right? Viruses are some microscopic agents which are responsible for causing infectious diseases. ये जिम्मेदार होते हैं infectious diseases फैलाने के, किसमें, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, किसी को भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, इधर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। ये लिखो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये अपने आप कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इसको क्या चाहिए, होस्ट सेल। किसी की उसको बॉडी में जाना ही है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। एक वायरस से बहुत सारे वायरस बनने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए, मतलब एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस बनने के लिए उसको एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। और लिविंग सेल कहाँ पे मिलता है, प्लांट में भी मिल सकता है, एनिमल्स में भी, एनिमल बॉडी में भी, प्लांट बॉडी में भी और ह्यूमन बॉडी में भी, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग यू थ्रू, सो second point, they don't have tendency to replicate by themselves. However, they need a host cell to make their multiple copies. किस तरह से ये अपने आप को डिवाइड करता है, अपने बहुत सारे वायरसेस ये बन जाते हैं एक वायरस से, कैसे। They don't have tendency to replicate by themselves. खुद तो replicate हो नहीं सकता. They need a host cell. वायरसेस को क्या चाहिए, एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है to make their multiple copies. Need a living host cell. Living लिख लेना इसमें, LIVING, living host cell to make their multiple copies. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग थ्रू, आई होप यू हैव नोटेड डाउन एंड सी हाउ इट हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल V फॉर वायरस, वायरस इज देयर, ये वायरस है। इसने क्या किया, मान लो ये पर्सन कोई ह्यूमन बॉडी है, राइट, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है, P1, वन मैन, ये कोई मैन मान लो, ठीक है जी। ये वायरस है, ये मैन है, ये उसकी बॉडी, ये वायरस की बॉडी। अब ये इस वायरस ने बाय चांस इसकी बॉडी में एंट्री ले ली, ठीक है। अब ये क्या है, बॉडी में एंट्री लेगा, अपना
जाल फैलाना शुरू करेगा, राइट। इसको इन्फेक्शन फैलाना इसका काम है ये। तो अब ये जो बॉडी में एंट्री ली, अब ये आ गया ये यहाँ पे V1, ठीक है। अब ये क्या करना शुरू करेगा, अपना जाल फैलाना ऐसा शुरू करेगा, एक से इसको ना एक लिविंग सिस्टम मिल गया, हमारी बॉडी का लिविंग सिस्टम मिल गया। इसके P1 के पास क्या है, लिविंग सिस्टम। और लिविंग सिस्टम में क्या है, सेल्स है, CELLS। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, ये सेल्स में एंट्री ले, हेल्दी सेल में एंट्री ले लेगा और बहुत सारी अपनी क्या करना शुरू कर देगा, V1 V1 V1, एक से ये डिवाइड होके ये एक V1 ये बन जाएगा, V2 बन जाएगा और ये V3 बन जाएगा। एक V1 डिवाइड होके V2 V3, उसने इसका सारा सिस्टम, इसके सेल का सिस्टम यूज करना शुरू कर देगा हेल्दी पर्सन के, और अपना बहुत सारे वायरसेस बनाने शुरू कर देगा अंदर। ये एक जनरल ओवरव्यू दिया जिसको आप कंप्लीट बहुत अच्छे से फर्दर वीडियोस में भी आप स्टडी करेंगे, ये कैसे अपना कोरोना वायरस स्पेशली अपना जाल फैलाता है और किस तरह से ये वायरसेस अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ये जो होते हैं ना, ये जो वायरसेस, एक चीज़ है, ये कुछ वायरसेस तो माइल्ड, कुछ वायरसेस क्या करेंगे, माइल्ड इन्फेक्शन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, मॉडरेट इन्फेक्शन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, बहुत सीवियर इन्फेक्शन करेंगे। आपने देखा होगा कि हमें हर साल जैसे ही मौसम बदलता है क्या होता है, क्या होता है, छींक सडनली क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है, थोड़ा कॉफ हो जाता है, लेकिन 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। और ये जो सीजनल फ्लू होता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही 4-5 दिन में अपने आप ही, आप जनरली घर पे कुछ होम रेमेडी से ही कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। मैं कितने लोग, दे मेक काढ़ा, दे मेक टी, पुटिंग तुलसी इनसाइड, पुटिंग लौंग इनसाइड, राइट। सो दिस इज सीजनल फ्लू, राइट, एंड दैट इज नॉट, वो सीजनल फ्लू ऐसा खतरनाक भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं देते, कुछ वायरसेस होते हैं इट कैन टेक द पेशेंट्स लाइफ, राइट। तो जो कोरोना वायरस है, ये या तो पर्सन की बॉडी में माइल्ड सिम्टम देगा, मॉडरेट देगा, या फिर उसको सीवियर इन्फेक्शन दे जाएगा, डिपेंड करता है। और ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में उसने कितना इन्फेक्शन कॉज किया, कैसे। अब ये कैसे होता है ना कि किसी को तो उसने थोड़ा सा इन्फेक्शन, किसी की बॉडी पे थोड़ा बहुत ही असर हुआ कोरोना वायरस ने जब एंट्री ली, या किसी भी वायरस ने एंट्री ली, किसी की बॉडी में थोड़े बहुत से थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, किसी की बॉडी में सीवियर हो गया, और किसी की बॉडी में इतना क्रिटिकल इन्फेक्शन हो गया कि इट हैज़ टेकन पर्सन्स लाइफ, राइट। तो एक वायरसेस की और टेंडेंसी क्या होती है, अब इसका थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड, वायरसेस may cause mild to severe infections viruses may cause mild to severe infections or can be lethal as well। अब lethal क्या होता है, lethal मतलब जानलेवा, lethal मतलब जानलेवा। I am writing it here, LETHAL, जानलेवा। कुछ केसेस में ये जानलेवा भी हो सकते हैं। एनीवेज, प्लीज़ डर कर मत पढ़ना, बिकॉज हम पिछले साल से यही सुन रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो यू आर द सोल्जर्स, बी ब्रेव एंड स्टडी, क्योंकि अगर हमें समझदारी से हम चलेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, ऐसी बात नहीं, हम भी बच सकते हैं। और ज़रूरी नहीं ये सबकी जान ले। पहली चीज़, 80% ऑफ केसेज आर दे गेट फाइन। आई एम लाइक पीपल हु आर इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, they get fine at their home only, 80% cases mild,
20% केसेस में ऐसा कुछ सीन आ जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट 80% में आ जाता है। उसके बाद जाकर 20% केसेस इस तरह के हो जाते हैं जब ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 80% तो दे आर फाइन एट होम ओनली, घर पे अपना ख्याल रखें, आइसोलेट करें और अपना जो डॉक्टर से एडवाइस लें फ़ोन पे, जो डॉक्टर का है वो मेडिकेशंस फॉलो करें। और इसकी कोई एक प्रॉपर अभी तक कोई मेडिकेशन है नहीं, पहली चीज़ तो दैट्स वेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैक्सीनेशन प्रोसेस. Anyways, we will be studying this as well going forward. So first finish about this, what are viruses, so that I can start with the coronavirus. What exactly coronavirus is? ठीक है जी. अब you just note it down so that I can move it forward. Now, अब आते हैं what is COVID-19. Okay, we were on the slide. आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया राइट कि ये होता क्या है. और थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर. जो हमें डिसीजेस होती हैं ना वो किस किस कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स, वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस और फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं. आपने स्किन पे देखा कई बार एलर्जिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है फंगस है. ठीक है, इस टाइम पे आप ब्लैक फंगस को इतना सुन रहे हो. सो देयर आर सो मेनी, दे आर, इनको कहते हैं फॉरेन एजेंट्स. फॉरेन वर्ड से नाम आता है ना, बाहर से कोई चीज़ आई हुई. फॉरेन एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए या प्लांट बॉडी के लिए या एनिमल बॉडी के लिए. फॉरेन एजेंट्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई. ठीक है, आज कुछ ओवरऑल व्यू आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ें फर्दर स्टडी कर पाएंगे. आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक यू जस्ट रैंडम एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक्स. I want you to know each and everything detail and in depth so that you should have a proper knowledge about the subject that you are studying right now in the session. ये फॉरेन एजेंट्स सबसे पहले जानिए. वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, आपने वायरस जान लिया. इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई क्या होते हैं, दे आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दे आर द माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल. इन्हें पैरासाइट्स भी, पैरासाइट्स क्या होते हैं, इन्हें पैरासाइट्स भी आप कह सकते हो. पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो जान भी ले सकते हैं, बॉडी में जाने के बाद खा जाते हैं बॉडी को. सो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, जब वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, दे आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और द माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीजेस, infectious diseases in plants, animals or humans. वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई क्या होते हैं? दे आर द माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की. तो एक बार लिख लो ये जनरली, सो दैट यू शुड नो. अभी आप क्योंकि इतनी सारी कोविड के बाद आप ब्लैक फंगस के केसेस यू आर हेयरिंग अबाउट द वाइट फंगस, यू आर हेयरिंग अबाउट द येलो फंगस. यू शुड नो कि कैसे को रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं. और जनरली आप फंगस भी सुनते हो तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. दे आर the microscopic agents responsible for causing illness मतलब बीमारी, illness बीमार कर देते हैं. illness, ILLNES, in plants, animals and humans. They are the microscopic agents responsible for causing illness. ILLNESS. Illness in plants, animals and humans. HUMANS. ये है. अब इनको फॉरेन एजेंट्स क्यों कहा जाता है?
बाहर से ही आई ना कोई चीज़ हमारी बॉडी में, फॉरेन एजेंट्स। आपको पता है हम डेली ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अभी भी सराउंडिंग में हमारे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और ये सब घूम रहे हैं, हम लोग इनटेक कर रहे हैं। बहुत सारे कितने वायरसेस है जो किस किस की स्टडी, आप वायरोलॉजी इज अ साइंस जिसमें आप इसकी स्टडी करते हो, कितने तरह के वायरस होते हैं, क्या बीमारी करते हैं। सो इट्स अ ह्यूज ब्रांच, राइट। हाउएवर आपको पता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो रेगुलर फाइट करता है हमें बीमारियों से बचाने में। तो कोरोना वायरसेस आर द फैमिली ऑफ वायरसेस। ये अकेला नहीं है, इसका पूरा परिवार है, ठीक है। जैसे हमारे घर में ही परिवार होता है, ठीक है, तो घर में कोई 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो सब अलग अलग तरह के ऑलमोस्ट क्या होता है कि काफ़ी जो एक ही घर के लोग होते हैं वो थोड़े सिमिलर दिखते हैं एक जैसे आसपास, किसी का चेहरा मिलता होगा, किसी का मॉम डैड से फेसेस, बच्चों के भी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी मिलती है। तो एक समझ लो, कोरोना वायरसेस आर अ फैमिली ऑफ वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज इन mammals and birds. Are the family of viruses responsible for causing infectious diseases in mammals and birds. ये जो कोविड-19, ये जो आपने कोविड, अभी मैं आपको ये पहले बता दूं, कोरोना वायरसेस आर द फैमिली ऑफ वायरसेस, इसकी भी अपना परिवार है, जिनमें से जो अभी नया कोविड-19 बीमारी फैलाने वाला वायरस है, कोविड-19 क्या है, ये बीमारी का नाम है और वो होती किससे है, SARS-CoV-2 वायरस से। और ये SARS-CoV-2 वायरस किस परिवार का है, कोरोना वायरस फैमिली का है। जैसे आप एक परिवार में लोग रहते हैं, एक परिवार में 5 लोग भी रहते हैं, 6 लोग भी, 7 लोग भी, 3 लोग भी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैमिली, कुमार लेते हैं, लास्ट नेम है ये कुमार फैमिली है। उस कुमार फैमिली के अंडर बहुत सारे लोग होंगे ना, उसके 3, मान लो कुमार है जो हेड है फैमिली के, उनके 3 बच्चे, ठीक है, तो एक ही परिवार के लोग हुए ना वो। तो ऐसे ही और काफ़ी मिलते जुलते भी होंगे, फेसेस भी, फीचर्स मिलते जुलते होंगे, लुक्स मिलती जुलती भी होती है जब एक ही परिवार के लोग होते हैं। तो ऐसे ही कोरोना वायरसेस आर द फैमिली ऑफ वायरसेस। ये एक वायरसेस का परिवार है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, जिम्मेदार है काफ़ी सारी जो इन्फेक्शियस डिसीजेस करता है, किसमें, मैमल्स में और बर्ड्स में। मैमल्स में आपके बैट्स आ जाते हैं, और ये आपने सुना होगा कि ये कहीं ना कहीं चमगादड़ से आया है ये वायरस। ये देखा, ये अगर आप कोरोना जो लास्ट की स्टडीज़ हुई है ना, ये कोरोना वायरस नया नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, पहली बार साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1965 में, कोरोना वायरस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वन साइंटिस्ट नेम टैरल। मिस्टर टैरल डिस्कवर्ड दिस वायरस एज अ कोरोना वायरस इन 1965। उसके बाद इसके बहुत से और भी वायरसेस डिस्कवर होते गए कि कोरोना वायरस की फैमिली में वो ऐड होते गए। पहली बार कब देखा, 1965 में, और उसके बाद और भी तरह के कोरोना वायरस डिस्कवर होते गए टाइम टू टाइम। तो अभी ये जो नए वाला आया है उसका नाम है SARS-CoV-2, बट ये किस परिवार का है, कोरोना वायरस फैमिली का ही है, ठीक है। अब ये जान लो कि इसको SARS-CoV-2 क्यों कहते हैं और ये कोविड-19 बीमारी क्यों कहते हैं इसको। इन्फेक्शियस, यार ज़्यादातर ये कोरोना वायरस पता है कैसी बीमारी करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज किस तरह की, रेस्पिरेटरी इलनेस ज़्यादा करते हैं ये,
फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इनके। अगर आप इसमें लिखो इन्फेक्शियस डिसीजेस, ज़्यादातर ये किस तरह की इलनेस कॉज करते हैं ये कोरोना वायरस? फ्लू लाइक इलनेस। They are responsible for causing flu-like illness। जैसे फ्लू होता है आपको, मतलब खांसी जुकाम, फ्लू होता है, उसमें ऐसा होता है, थोड़ा सा हमें नोज़ में कंजेशन फील होता है, चेस्ट में थोड़ा सा हैवीनेस फील होती है, राइट? जब आपका नोज़ ब्लॉक हो जाता है, रनिंग नोज़ हो जाता है, उस तरह के इसमें सिम्टम आते हैं। कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो ज़्यादातर इसी तरह की बीमारियां कॉज करती है, जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। आई एम रिमूविंग दिस सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड SARS-CoV-2। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो एक तो आप जब उसकी शॉर्ट फॉर्म ना, उसकी ना फुल फॉर्म ज़रूर जाना करो, क्योंकि जब फुल फॉर्म जानते हो तो आधा सार तो उसी में निकल आता है उसका कि वो चीज़ है क्या एग्जैक्टली। तो अभी हम जानेंगे पहले SARS-CoV-2, पहले इसकी फुल फॉर्म, फिर कोविड-19 की फुल फॉर्म, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वो डेफिनेशन क्या कहती है। फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी syndrome। S for severe, A for acute, R for respiratory, S for syndrome, hyphen, CO, CO means COVID, V for virus, coronavirus 2, ये इसकी फुल फॉर्म है, severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2। Now COVID-19। अब इसकी बात पढ़ो फुल फॉर्म। CO मतलब कोरोना, V मतलब आपने अभी पढ़ा, COV क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोरोना वायरस, D फॉर डिसीज, ये 19 आया है 2019 से, क्योंकि दिसंबर 31 दिसंबर 2019 को ये पहली बार नोटिस में रिसर्च में आया था, नोटिस किया गया था कि एक इस तरह का कोई कोविड-19 इस तरह का कोई वायरस है जो ना बहुत सारे निमोनिया के केसेस, बाय चांस ऐसा होने लगा था चाइना में, सडनली निमोनिया के केसेस, इतने निमोनिया के केसेस आने लगे थे भर भर के, जैसे इट वाज कमिंग इन क्लस्टर्स, राइट, कि ये समझ नहीं आ रहा था ये सडन एकदम से कैसे इतना निमोनिया फैल गया, कहाँ से ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो बाद में ये रिसर्च सामने आई कि ये इस नाम के वायरस के थ्रू स्प्रेड हो रही है निमोनिया जैसी सिकनेस, और फिर फाइनली इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19। तो कोविड-19 इज द डिसीज, कोविड-19 क्या है? बीमारी है। डिसीज किससे होती है? एक नया कोरोना वायरस जो आइडेंटिफाई किया गया है जिसका नाम है SARS-CoV-2, उससे होती है। कोविड-19 एक बीमारी है जो एक नए कोरोना वायरस से होती है जो है SARS-CoV-2। We first learned of this new virus on 31st December 2019। पहली बार कब इसके बारे में जानकारी मिली? 31st December 2019 फॉलोइंग अ रिपोर्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ वायरस। वो कैसे रिपोर्ट में? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी थी ऐसे क्लस्टर ऑफ भर भर के, क्लस्टर मतलब बहुत सारे भर भर के केसेस आने लगे थे निमोनिया, वायरल निमोनिया के, और ये समझ नहीं हो रहा था कौन से वायरस से हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वुहान सिटी से आने लगे थे, चाइना की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये है कोविड-19। COVID-19 is the disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2. We first learned of this new virus on 31st December 2019 following a report of a cluster of cases of viral pneumonia in Wuhan, People's Republic of China. So let's move on. Next slide. The most common symptoms of COVID-19 are
कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स अब हम पढ़ेंगे। आपने जान लिया ये कोविड-19 क्या है, किस वायरस से होती है। लेट्स नो अबाउट इट सिम्टम्स। अब होती है ये बीमारी कोविड-19 तो सिम्टम भी तो आते हैं ना, किसी भी बीमारी का सिम्टम आएगा तभी पता चलेगा ना ये बीमारी है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं क्या है, फीवर आ जाता है, फीवर आता है। इसमें मोस्ट कॉमनली क्या क्या होता है बॉडी में जब कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है कोविड-19 से, SARS-CoV-2 से? फीवर, ड्राई कॉफ, फटीग, ये बहुत कॉमन है। ड्राई कफ होना, फटीग, थकान महसूस होना, फीवर आ जाना। और आजकल तो कोई छींक भी देता है तो लोग दूर दूर भागते हैं, अरे भाई इसको कोरोना ना हो। जबकि ये एक जनरल, सच बोलूँ तो इस टाइम पे एक सीजनल फ्लू भी चल रहा है जो वायरल, लेकिन अभी वो हवा ऐसी फैली है कि किसी भी केसेस में मैक्सिमम अब तो इट्स लाइक कि अगर वो इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो सबसे पहले सस्पेक्ट यही जो जाता है कि शक यही जाता है कि पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिसीज। Other symptoms that are less common and may affect some patients include, ये less common symptoms हैं but ये भी patients में आते हैं, बहुत तरह के symptoms देता है। सबसे पहला लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, टेस्ट का चला जाना, स्मेल, ये तो आपने बहुत ही, ये वैसे कॉमन देखा होगा आपने ये, लेकिन काफ़ी लोगों में ये, लेकिन अगर इसमें दो इट्स मेंशन लेस कॉमन बट ये आया है, बहुत लोगों में आया है। नेजल कंजेशन, नेजल नोज में ऐसे कंजेशन फील होना। कंजक्टिवाइटिस ऑल्सो नोन एज रेड आइज, कंजक्टिवाइटिस मतलब आइज में रेडनेस आ जाती है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट गला कैसा हो जाना, सोर थ्रोट क्या होता है, इससे पका पका गला हो जाता है वैसा। हेडेक, सिर में दर्द। मसल और जॉइंट पेन, मसल्स में भी, जैसे तो आपने सुना भी होगा काफ़ी पेशेंट्स से कोरोना के कि पूरी बॉडी टूट रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है। मसल पेन को यूजुअली हम कहते हैं मायल्जिया। मायल्जिया तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो जाता है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में हो जाता है, मसल पेन काफ़ी फील होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन रैश, अलग अलग तरह के स्किन पे ऐसे रेडनेस है, रैशेज किसी अपने आप ही स्किन में पड़ जाएंगे, पाँव पे। कई लोगों से ये भी सुनने को मिला था कुछ पेशेंट से कि पाँव में एकदम से रेडनेस हो रही है, रैश हो रहा है, यहाँ पे रैशेज आ रहे हैं, आर्म्स पे, हैंड्स पे। नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया ऐसा नहीं होता, सिर वॉमिट जैसा फील होना, सिर चकराना, ये भी बहुत कॉमन वैसे हुआ है लोगों में। डायरिया, डायरिया क्या होता है, बार बार मोशन के लिए जाना, लूज मोशंस हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना बॉडी, ठीक है। चिल्स और डिजीनेस, चिल्स ठंड लगना, जैसे ऐसा फीलिंग आना। डिजीनेस, डिजीनेस सिर चकरा रहा है भाई, मैं गया, काइंड ऑफ फीलिंग। डिजीनेस मतलब सिर चकराना। सो लेट्स मूव ऑन। सिम्टम्स ऑफ सीवियर कोविड-19 डिसीज इंक्लूड, सीवियर केसेस में क्या होता है, let's see what exactly happens. So shortness of breath, ये आपने अभी बहुत सारा हंगामा देखा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट, सैचुरेशन हैज़ गॉन डाउन, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब जैसे एकदम से सांस छूट रही है, सांस जैसे छूटती है, शॉर्टनेस। अभी हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं ना, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपसे आप इसे सुन रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। इसमें वो क्या होगा, सांस छूटेगी, ठीक है। आप थोड़ा सांस लोगे, थोड़ा सांस लेने की कोशिश करोगे, डिफिकल्टी होगी ना ब्रीदिंग में, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो सांस छूटेगी, एकदम थोड़ी सी सांस लोगे छूटेगी, दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, भूख मर जाना। कंफ्यूजन, ये बहुत एकदम से माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन एकदम से, जब आपकी बॉडी यहाँ से
पूरा टूट रही है, जैसे ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जैसे मेरे से उठा ही नहीं जा रहा बेड से। पर्सन इज नॉट एबल टू, ऑब्वियसली वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है ढंग से, ब्रीथ नहीं ढंग से कर पाएगा, पूरी बॉडी में ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होगा ऑर्गन्स में, नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, तो उसके माइंड में ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्रीदिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा माइंड में, ठीक है। पेशेंट कैसा हो जाए, कंफ्यूजन सी क्रिएट होने लगती है उसके माइंड में। परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन द चेस्ट, परसिस्टेंट लगातार, परसिस्टेंट लगातार, पेन और प्रेशर इन द चेस्ट, लगातार यहाँ पे चेस्ट में एकदम से रुका हुआ से पेन रुक जाता है ना, वो लगातार होते रहना, प्रेशर फील होना चेस्ट रीजन में। हाई टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 100 से अबव चला जाता है, 100 हो गया, उससे 100 अबव चले जाना, 101, 102 नीचे जा ही नहीं रहा है और टेम्परेचर कंसिस्टेंट रह रहा है, ये सीवियर केसेस में होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है। माइल्ड सा फीवर तो आ सकता है, कोई दिक्कत, 99 चला गया और कई बार 100 भी चला जाता है, बट स्टिल पर्सन इज फाइन। बट 100, मैं ये आपको एक प्रैक्टिकल केसेस में कह रही हूँ कि 100 या उससे अबव कंसिस्टेंट जा रहा है फीवर, तो इट्स नॉट गुड जो केसेस सामने आया। सो लेट्स मूव ऑन। अदर लेस कॉमन सिम्टम्स आर, बाकी जो लेस कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं वो है इरिटेबिलिटी, ये लेस कॉमन सिम्टम्स में है। इरिटेशन फील होना बहुत ज़्यादा, पेशेंट फील सो मच इरिटेटेड, जैसे एकदम परेशान सा, चिड़चिड़ापन हो जाना। कन्फ्यूजन मतलब एकदम से माइंड वर्क नहीं, जैसे होता है ना, आपको कोई बात भी कर रहा है तो आप कैसे जवाब दे रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो। नॉर्मल बॉडी जैसे हम एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक कन्फ्यूजन से क्रिएट हो जाती है, माइंड एकदम से अच्छे से काम नहीं कर रहा। रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस समटाइम्स एसोसिएटेड विथ सीजर्स, रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस कम होने लगती है। समटाइम्स कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सीजर्स डेवलप हो जाते हैं। ब्रेन में क्या हो जाता है, फंक्शनिंग सही नहीं होती, ठीक है। सीजर्स वो कंडीशन हो जाती है ब्रेन में इस तरह की, जब एक अलग तरह का ब्रेन कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है। आपका जो नर्व्स का बैलेंस है, कंडक्शन, आपके ब्रेन से सारा मैसेज जाता है। फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी, आपको पेन फील होता है, कौन मैसेज दे रहा है? ब्रेन को मैसेज आ रहा है कुछ हुआ है, इंजरी हुई है, आपको दर्द महसूस होता है। फिर उसका ये सारा कोऑर्डिनेशन आपके ब्रेन को, हाँ, कौन कर रहा है? पूरी बॉडी को मैसेज कहाँ से जा रहा है? ये ब्रेन के थ्रू। ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी, राइट। अब जब ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं होगा, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना शुरू होता है, सीवियर केसेस में ऐसा हो जाता है, तो ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और भी चेंजेस आने लगते हैं, और भी जो आप आगे पढ़ोगे कि सीवियर केसेस में क्या क्या कंडीशन हो जाती है, आप ये वीडियोस में वैसे स्टडी करोगे। एनीवेज अभी हम यहाँ पे होल्ड ऑन करते हैं। समटाइम्स एसोसिएटेड विद सीजर्स ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ब्रेन ढंग से फंक्शन करने की स्टेट में भी नहीं हो पाता। एंग्जाइटी, चिंता, एकदम से वरी बढ़ जाना। देखो आपने देखा होगा इस केसेस में काफ़ी, आपने अगर केसेस देखे हो, काफ़ी लोग ना एंग्जाइटी की वजह से भी गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिसीज़ का इतना हवा बन गया था, हवा क्या एक्चुअल में हुआ भी है, इतना ज़्यादा हैवॉक क्रिएट हो गया, इतनी हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हो गई आसपास कि लोगों में, आप देखो घर बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन बाहर से केसेस सुन रहे हैं, अरे वो यंग इंसान था, सडनली वो कोविड हुआ एंड ही इज़ नो मोर। कल ही तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, सही बात कर रहा था, बट एक सडनली नो मोर, अरे एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका सैचुरेशन इतना गिर गया। तो वो सुन के घबराहट होने लगती है। एंग्जाइटी कौन सी कंडीशन होती है? जब इंसान बहुत ही वरीसम कंडीशन में आ जाता है, चिंतित, बुरी तरह से चिंतित,
फिर उससे क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। जब ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी, हार्ट पैल्पिटेशन तेज़ होगा, तो ऑब्वियसली जब ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट जाएगा तो आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट करेगा, वो कर सकता है, ठीक है, सडन ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, और आपके हार्ट पे भी बुरा असर पड़ेगा, ऑब्वियसली हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एंग्जाइटी भी कर सकता है ये कुछ केसेस में। डिप्रेशन, पर्सन गोज इन द डिप्रेशन एज वेल। बॉडी ढंग से ट्रीट नहीं कर, जब बॉडी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती ना, तो आप अच्छा हेल्दी फील कर ही नहीं रहे हो। एक अजीब सी कंडीशन हो रही है बॉडी के साथ, ना ढंग से भूख लग रही है, इरिटेशन हो रही है, कहीं पे पूरे जॉइंट्स में मसल्स में पेन हो रहा है, या फिर ब्रीदिंग ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेस्ट में परसिस्टेंट पेन हो रहा है, कुछ इन सारी चीज़ों से ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं पर्सन किस में जाना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में। और कुछ वो टेंशन की वजह से भी कहीं मैं भी दुनिया से चला जाऊँगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो, हम आसपास भी ऐसी न्यूज़ सुन रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर प्लीज़ इतना एकदम पैनिक मत हो, प्लीज़ नेवर गेट पैनिक। अगर हुआ भी है कोरोना, पहली चीज़ 80% केसेस आर वेरी वेल मैनेज्ड एट होम। 80% केसेस में इंसान अच्छा खासा ठीक हो जाता है घर पे ही रहकर, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करके और अपनी केयर करके, आइसोलेट होकर, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर डाइट लेके। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन बिगड़ जाती है, तो कभी भी एकदम से वो डिप्रेशन, एक अपनी ज़िंदगी की भी टेंशन होने लगती है पर्सन को, तो एक डिप्रेसिंग से स्टेट हो जाता है। सो डिप्रेशन, ये लेस कॉमन। स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती अच्छे से, इतनी टेंशन लेगा पर्सन, सोचेगा, बॉडी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, अनहेल्दी फील करवाएगी, बहुत ज़्यादा सिक फील करवाएगी। डिप्रेशन में स्लीप डिसऑर्डर होगा ही होगा, नींद नहीं आएगी ढंग से, या बेचैनी होगी, या पेन की वजह से बेचैनी होगी, किसी ना किसी सोच की वजह से बेचैनी होगी, और जो उसकी बॉडी में एक अनहेल्दी सिचुएशन हो रखी है उससे बेचैनी से नींद आनी, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती। More severe and rare neurological complications such as strokes, ये बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में, लेकिन ये रेयर कंडीशन में होता है ऐसा। न्यूरोलॉजिकल, जब भी न्यूरो वर्ड आप कहीं पढ़ें तो वो रिलेटेड होता है मेरे ब्रेन से। एक मिनट, न्यूरो वर्ड जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, रिमेंबर दैट, NEURO। तो मोर सीवियर एंड रेयर, ये रेयर होता है, बहुत कम। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर है, सच एज स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक आ जाना। ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है कि जब कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम, मान लो चोट लगती है तो आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ब्रेन इंजरी भी होने के, ब्रेन इंजरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। डिलीरियम एंड नर्व डैमेज, आपके नर्व का भी डैमेज हो सकता है, डैमेज नर्व्स में भी। फिर जब नर्व डैमेज होगी तो मैसेज तो नर्व्स ही कैरी करके ला रही है ना हमारी बॉडी की। अब मुझे ऐसे कोऑर्डिनेशन में चलना, मैं वॉक कर रही हूँ, मेरे को अपने हैंड्स को कोऑर्डिनेटेड रखना है, अपने लेग्स और पाँव को कोऑर्डिनेटेड रखना है, कोई मुझसे कुछ बात कर रहा है तो मुझे अटेंटिवली उसको सुनना है। ये सारे मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ब्रेन से। ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है ये सारी चीज़ें, ये कोऑर्डिनेशन ब्रेन से चल रहा है, राइट। एक नॉर्मल इंसान वो वैसे, अब वो पर्सन उस लेवल पे नॉर्मली ट्रीट नहीं कर पाएगा। कोई बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कन्फ्यूजन स्टेट में है, सुन रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा ढंग से, ऐसी स्टेट हो सकती है। ऐसा डिलीरियम वो कंडीशन हो जाती है जब एक पर्सन की नॉर्मल स्टेट से कोमा के बीच की जो कंडीशन आ जाती है, डिलीरियम। एंड नर्व डैमेज होगा तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा बॉडी का। आप कोई कुछ पूछ रहा है ढंग से, आप सोच रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, समझने की क्षमता खत्म है, तो ऐसी सी कंडीशन में पर्सन जा सकता है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। पीपल ऑफ ऑल एजेस हु एक्सपीरियंस फीवर एंड और कॉफ, people of all ages who experience fever or cough associated with difficulty breathing or shortness of breath, chest pain or pressure or loss of speech or movement should seek medical care immediately. ऐसे केसेस में चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, कोई भी पेशेंट किसी भी एज ग्रुप का, एनी पर्सन, पीपल ऑफ ऑल एजेस हु एक्सपीरियंस, जिनको फीवर आए, कॉफ हो
और उसके साथ फीवर और कॉफ के साथ, फीवर कॉफ इज ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉफ है, इट्स ओके, फ्लू हुआ है तो वो कॉफ, तो फ्लू जैसी सिकनेस आई है तो वो कॉफ तो थोड़ा होगा, लेकिन जब ये फीवर और कॉफ के साथ एसोसिएटेड साथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगे, सांस छूट रही है, इस तरह की सांस लेने पेशेंट की इस कंडीशन में आ जाए, अगर चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन हो और प्रेशर फील हो चेस्ट में, और लॉस ऑफ स्पीच, बोल नहीं रहा है पेशेंट, बोल नहीं पा रहा है ढंग से, और मूवमेंट शुड, जैसे लॉस ऑफ स्पीच जा रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी में ढंग से, कहीं ना कहीं यानी कि ब्रेन में कुछ डैमेज हो रहा, ठीक है, ब्रेन में भी डैमेज हो रहा है, इसका मतलब स्पीच शुड सीक मेडिकल केयर इमीडिएटली। ऐसे केसेस में उसको मेडिकल पर्सन से कांटेक्ट करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ओके। इफ पॉसिबल कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हॉटलाइन और हेल्थ फैसिलिटी फर्स्ट सो यू कैन बी डायरेक्टेड टू द राइट क्लिनिक। सो पॉसिबल हो तो जल्दी से कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी आपका एक स्पेसिफिक डॉक्टर है उसे कॉल करो और उससे अपनी ये प्रॉब्लम, मतलब जो भी फैमिली में हो वो शेयर करे। पेशेंट नहीं होगा उस टाइम पे बात करने के, तो जो भी उसकी केयर टेकर है प्लीज़ कॉल करें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ये हॉटलाइन नंबर्स भी होते हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटी जल्दी से क्विकली वहाँ कॉल लगाए हेल्थ केयर फैसिलिटी में, सो यू कैन डायरेक्टली टू द, ताकि आपको वो हेल्प कर सके। मेडिकल पर्सन, द मेडिकल सिस्टम कैन हेल्प यू आउट टू डायरेक्ट यू टू द राइट clinic and the right department. Today's session, thank you, on a thank you note. So today we studied a lot about the COVID-19 disease. However, a lot more to be studied going forward. Okay, so we also learnt about the objective of this training, and as this training is getting facilitated by our Great Delhi Police through the training partner ICT Education, and I told you about the objective of this training and what would be the benefit of taking this training once you finish with this and earn required skills. And we also learned about what is COVID-19 disease, the symptoms, and which virus causes this disease, and we learned about the foreign agents and about what exactly the immune system in our body, what exactly the immune system. We talk a lot about immunity, we talk a lot about the immune system. So today you have learned the basics of everything which is required in the session, in the beginning of this session. So anyways, it was a lovely meeting all of you, and I hope I will see you in the next sessions. So I will be imparting a lot of knowledge across on this particular topic, and we'll share a more variety of things with you so that you can be best placed in the healthcare industry. Take care of yourself, stay fit, stay safe, and always eat healthy food. I'm your trainer Prerna Thakur, signing off today from the today's session. So take care of yourself. Bye bye.